Now we shall move on to the next question. Here you have to find the value of lambda using the properties of determinants. It is given that this determinant is equal to 0. So ये देखो, ये है 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा. अगर यहाँ से देखोगे तो हमें क्या करना है, हमें पहला हमारा मोटिव होना चाहिए कि सारा एटलीस्ट एदर वन रो और वन कॉलम जो भी है वो वन हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ तो कॉमन करना पड़ेगा. तो कैसे करेंगे हम? अगर मैं इन सब को ऐड कर रही हूँ, अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को एक साथ ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? जस्ट चेक. 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस लैम्डा माइनस 1 प्लस 5 माइनस लैम्डा माइनस मतलब प्लस इंटू ऐड किया तो माइनस 1 3 माइनस लैम्डा. अगर यहाँ भी हम कॉलम को ऐड कर रहे हैं तब भी हमें ये मिल रहा है 3 माइनस लैम्डा. ठीक है, अगर ऐसे भी करोगे रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 मतलब रो 1 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो सारे रो जो है 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से भी कर सकते हो. मैंने कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिया है. ठीक है, तो जैसे मैंने लिया तो क्या हुआ, कॉलम 2 कॉलम 3 हम एज इट इज़ लिखते हैं और कॉलम 1 को हमने लिख दिया 3 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा. अब 3 माइनस लैम्डा कॉमन हो गया, उसे बाहर निकाल दिया, है ना. अब निकाला तो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ 1 1 1 माइनस 1 5 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस लैम्डा. अवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वॉट R2 माइनस R1. मुझे इसको ज़ीरो करना है और इसको ज़ीरो करना है. तो ये ज़ीरो कैसे होगा? अगर मैं 1 से 1 माइनस कर दूँ और रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूँ. वंस आई एम सब्ट्रैक्टिंग दैट आई एम लेफ्ट विथ 3 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 1, है ना. और ये माइनस किया 0 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 5 माइनस लैम्डा माइनस माइनस 1, ओके, माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस माइनस 1. ठीक है, माइनस कर रही हूँ मैं रो 3 माइनस रो 1. ओके, देन व्हाट विल आई गेट? आई एम गेटिंग 3 माइनस लैम्डा 1 0 0 माइनस 1. just see I have just simplified that. Okay, 6 minus lambda 0 minus 2 2 minus lambda. Now what you have to do is we will expand along column 1. ठीक है, column 1 से expand कर रहे हैं. We will get 3 minus lambda. Okay, here 6 1 into 6 minus lambda into 2 minus lambda minus 0. Okay, this is equal to 0. So when it can be this 0, either 3 minus lambda should be 0 or 6 minus lambda into 2 minus lambda should be equal to 0. Okay, so 6 minus lambda into 2 minus lambda equal to 0 or 3 minus lambda equal to 0. When I solve this, I am getting a quadratic equation, that is lambda square minus 8 lambda plus 12. So when I solve this lambda equation, I am getting lambda is equal to 2, lambda equal to 6, because 2 6 are 12, 6 plus 2 8. I am getting this. And also 3 minus lambda equal to 0, which means lambda is equal to 3. So they can be lambda can be either 2 6 or 3. Then the determinant will be equal to 0. Now see question number 9. Question number 9 is prove a b c a square b square c square b plus c a plus c a plus b. This determinant is equal to b minus c minus a minus b into a plus b plus c. So see here, from the RHS you can see it is given b minus c minus a minus b, a plus b plus c, है ना. तो इसी को देख लो, हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं मुझे a प्लस बी प्लस सी कहीं से निकालना है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जस्ट सी द डिटर्मिनेंट. if I add column 1 and column 2, am I getting a plus b plus c, a plus b plus c, b plus a plus c, c plus a plus b. तो इस तरीके से मुझे a plus b plus c कॉमन आ रहा है. So what I am doing, first step what I am doing is I am adding column 1 with column 2. So I am getting a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c, a square b square c square, b plus c, a plus c, a plus b. Now what I am doing is here I am taking a plus b plus c common. उसे बाहर निकाला. I am left with 1 1 1 a square b square c square, b plus c, a plus c, a plus b. Now see, we have got one column as 1.
तो what we can do is our next step, what should be our next step? It should be that we have to change this 0 and this 0. So this can be done by r2 minus r1, r3 minus r1. So here what I'm doing, r2 minus r1. So this is equal to 1 minus 1 0, b square minus a square, a minus b. Again 0, c square minus a square, a plus b minus b plus c, which is equal to a minus c. Now what I'm doing, now we have to expand along c1. Once you expand along c1, what you will get, a plus b plus c, 1 into b square minus a square into a minus c, and a minus b into c square minus a square. What now, our next step should be what? See, I'm just simplifying this. B square minus a square can be written as b minus a into b plus a into a minus c. Again, ac square minus a square can be written as c minus a and c plus a. See here, see the question also. What do you need? You want b minus c, c minus a minus b. So just see here what you can take out इन बोथ दीज थिंग्स. यहाँ से और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो हमारे पास a माइनस बी है ये वाला, और a माइनस बी कॉमन है ना, और ये a माइनस सी है, c माइनस a है ना. तो हमें क्या चाहिए? c माइनस a और a माइनस बी. तो मैंने a माइनस बी और c माइनस a को बाहर निकाल दिया. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये जो है ये साइन चेंज है ना, ये b माइनस a है, तो हम क्या करेंगे, इससे बाहर माइनस ले लेंगे, है ना. तो ये हो जाएगा a माइनस बी, गेटिंग, और a माइनस सी हमें चाहिए c माइनस a, है ना. तो इसमें से मैंने भी माइनस निकाल दिया. तब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी साइन चेंज कॉम्पनसेट हो जाएगा. वो बचा क्या है, a प्लस बी, तो प्लस a प्लस बी रहेगा, माइनस a माइनस बी c माइनस a निकाल दिया है हमने बाहर. बचा क्या है, c प्लस a, तो c प्लस a लिख दिया. ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व किया, a प्लस बी माइनस सी माइनस इंटू प्लस माइनस a, तो प्लस a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा b माइनस सी. तो हमें क्या चाहिए, हम RHS a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी इंटू c माइनस a इंटू b माइनस सी. ओके, now see here, y plus z, z y, z x plus z plus x, x y, x x plus y, इसको हमने प्रूव करना है इज इक्वल टू 4xyz. अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉलम 1 मुझे 4 चाहिए, है ना, 4xyz, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकल रही कि किसी को हम कॉमन निकाल लें या फिर किसी को पूरा 1 कर दें या 0 कर दें. तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं. अब कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 को मैंने ऐड कर दिया. ठीक है, जब मैंने इसको ऐड किया तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 इंटू वाई प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस जेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. ठीक है, जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स प्लस वाई, ऐसे ही लिख दिया मैंने. ओके, अब मैंने क्या किया, 2 बाहर निकाला, बच्चा वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं देखो यहाँ पे x प्लस जेड है, z प्लस एक्स है, ये मैक्सिमम ज़ीरोस लाने की कोशिश करो, है ना. तो हम क्या करेंगे, अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो y प्लस जेड माइनस जेड इक्वल टू वाई, एक्स प्लस जेड, जेड प्लस एक्स 0, है ना, एक्स प्लस वाई, एक्स वाई, बाकी हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज़ लिख दिया. अब y है तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको भी 0 कर दें, है ना. तो ये पॉसिबल हो सकता है. अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, रो 3 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 किया तो मैंने क्या किया, रो 3 माइनस रो 1, वाई माइनस वाई 0 हो गया, एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस वाई. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपैंड किया तो वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स माइनस, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये हो गया एक्स जेड है 2xz, 2 इंटू 2xz यू विल गेट 4xyz. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 ऑल द कॉलम्स को
ऐड किया। फिर हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि कहीं से अगर ज़ीरो हो रहा है, पहले तो हमने कोशिश करना 1, अगर 1 नहीं हो रहा चलो ठीक है हम ज़ीरो कर लेते हैं। तो ज़ीरो हो रहा है तो उन दोनों कॉलम्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, और जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो दिख रहा है कि अगर मैं इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो फिर ईज़िली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बाद में हमने एक्सपैंड किया along C1 and you get the answer.